Good morning, students. How are you? Yes, students, I hope all of you are fine and happy at your home. Yes, students, in our previous video, we have done reading part of chapter number 2, and also we have done part D and back exercise of chapter 2. And yes, students, in this video we are going to start part E of chapter 2, that is plants. Part E. Now we will start one by one question answer of all part E. Okay, we are going to discuss question number 1. Draw the diagram of tap roots and fibrous root. You have to draw diagram of, आपने tap root और fibrous root का diagram draw करना है. Okay students, tap root and fibrous root. Everybody knows how to draw the diagram of tap root and fibrous root? Yes student? Yes, of course. Now these are the tap roots. टैप रूट मीन्स अ लॉन्ग थिन रूट, एक लॉन्ग रूट एंड मैनी थिन रूट्स अराइजिंग फ्रॉम दिस लॉन्ग रूट. लॉन्ग रूट जस्ट लाइक कैरेट एंड रेडिश. लॉन्ग रूट एंड देन मैनी थिन रूट्स अराइजिंग फ्रॉम these are the thin roots. This brown part is roots and this brown part grow downwards below the ground. ground के नीचे, soil के अंदर. Okay students, these are tap roots and this green part grow above the ground. These are the leaves, plants leaves. Okay, these grow upward. Clear student? So example of tap root is this brown part. This brown part is example of tap root. Now fibrous root. These are the fibrous roots. Bunch of roots. Bunch of thin roots. Bunch means गुच्छा. एक बंच बन जाता है, एक गुच्छा बन जाता है थिन रूट्स का. ओके, दिस ब्राउन पार्ट बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे सॉइल के अंदर, दिस ब्राउन पार्ट इज नोन एज फाइबरस रूट एंड दीज आर द लीव्स ऑफ द प्लांट. ओके, ये लीव्स है डेट्स ग्रो अपवर्ड एंड ब्राउन पार्ट इज fibrous root. Okay students, diagram of tap root and fibrous root. You also have to draw the diagram of tap root and fibrous root in your science notebook. Okay student, now we are going to discuss question number 2. In what ways is the tap root different from fibrous root? Tap root fibrous root से different कैसे है, means इन दोनों में क्या difference है? Tap root, fibrous root. Now tap root means it is a single long root. एक single long root होती है, as we discussed earlier. It is a single long root with thin root arising from it, just like in the diagram. It's a single long root and many thin roots arising from these. Okay students, this is a tap root. And fibrous root, bunch of thin roots. Fibrous root means there is a bunch of roots that arise from the base of the stem. बेस ऑफ द स्टेम के बेस से जो थिन रूट्स अराइज होती है, जिनका एक बंच बन जाता है, डाटा नोन एज फाइब्रस रूट. ओके, एग्जाम्पल रोज एंड नीम. रोज एंड नीम आर द एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट. एंड banana and grasses are the example of fibrous root. So students, tap root means single long root with thin roots arising from it, and fibrous root means bunch of roots that arise from the base of the stem. स्टेम के बेस में से जो अराइज होती हैं थिन रूट्स. ओके, एग्जाम्पल रोज एंड नीम एंड फाइब्रस रूट, बनाना एंड ग्रासेस. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. स्टेट 2 मेन फंक्शन ऑफ द रूट्स. रूट्स के 2 मेन फंक्शंस क्या, 2 मेन काम क्या है, प्लांट्स के अंदर क्या काम करती हैं रूट्स? आंसर इज
रूट्स फिक्स द प्लांट्स इन द सोइल। रूट्स प्लांट्स को फिक्स करके रखती हैं सोइल के अंदर। रूट्स का काम क्या है? प्लांट्स को फिक्स करके रखना, उसको स्ट्रेट खड़ा करके रखना। सेकेंड, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। रूट्स जो हैं वो सोइल के अंदर से, सोइल मीन्स मिट्टी के अंदर से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, सोख लेती हैं। मिनरल्स जो होते हैं वो सोइल के अंदर, मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वाटर जब बारिश आती है या फिर जब हम खुद प्लांट्स को वाटर डालते हैं तो सोइल के अंदर वाटर आ जाता है और वो वाटर जो है रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। सोइल के नीचे वाटर प्रेजेंट भी होता है, ग्राउंड वाटर। ओके स्टूडेंट्स, रूट्स का वर्क क्या है? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेना, सोख लेना और प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंचाना। ओके, सो दैट प्लांट जो है अच्छे से ग्रो कर सके, प्लांट्स के अदर पार्ट को भी वाटर और मिनरल पहुंच सके। तो ये सब काम कौन करता है? रूट्स। रूट्स फिक्स द प्लांट इन द सोइल। रूट्स प्लांट्स को सोइल के अंदर फिक्स करती है। और सेकेंड, रूट्स वाटर और मिनरल्स को सोइल में से एब्जॉर्ब करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4. In what ways are the roots of banyan tree and maize are special? Banyan tree और maize tree. Banyan tree means बरगद, maize means मकई, मक्का जिसे आप छल्ली भी बोलते हैं, जिसके हम छल्ली खाते हैं, मकई। मक्का और banyan tree दोनों की रूट्स जो हैं वो स्पेशल क्यों हैं? Why the roots are known as special roots? इनकी रूट्स को स्पेशल क्यों बोला जाता है? आंसर, these roots are special. ये रूट्स इसलिए स्पेशल हैं because they come out to provide extra support to keep the plant erect. ये इसलिए रूट्स ग्रो करती हैं so that ये प्लांट्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सके। सपोर्ट मीन्स सहारा, अलग से सहारा दे सके so that हमारा प्लांट जो है स्ट्रेट सीधा खड़ा हो सके। इरेक्ट मतलब सीधा खड़े होना। These roots are special. ये रूट इसलिए स्पेशल है because they come out to provide extra support to keep प्लांट इरेक्ट। ये रूट्स प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती है सो दैट प्लांट सीधा खड़ा हो सके। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस योर पार्ट इज कंप्लीट। बट नाउ स्टूडेंट, you have to write question number 5 also in part E. This question number 5 is not mentioned in your book, but you have to write down. Okay, you have to write down this question number 5 in your part E, in your fair notebook. Okay. How does the roots help in soil conservation? Roots soil conservation में कैसे help करते हैं? Soil conservation मतलब soil को conserve करके रखना, बचा कर रखना, कैसे help करते हैं उसमें? Roots help to bind the soil. रूट्स जो हैं सोइल को बाइंड करके रखते हैं, पकड़ कर रखते हैं अच्छे से। रूट्स कहाँ पे ग्रो करती हैं? सोइल के अंदर। और सोइल पार्टिकल्स को रूट्स जो हैं अच्छे से बाइंड करके रखते हैं। डेट्स वाई स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी प्लांट को सोइल में से उखाड़ते हैं तो हमें थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। वाई? बिकॉज जो रूट्स हैं वो सोइल के पार्टिकल्स को सोइल के अंदर उसको अच्छे से जकड़ कर रखती हैं, पकड़ कर रखती हैं सोइल पार्टिकल्स को। रूट्स हेल्प टू बाइंड द सोइल पार्टिकल्स एंड सोइल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे। और सोइल की रक्षा करती है सो दैट सोइल जो है वो वॉश्ड अवे मतलब बहकर ना चली जाए। जैसे जब बारिश आती है तो सोइल पार्टिकल्स, ऊपर की जो सोइल होती है, मिट्टी होती है, वो बहकर पानी के साथ चली जाती है। बट जहाँ पे ट्रीज़ प्लांट्स होते हैं वहाँ की सोइल जो है वॉश्ड अवे नहीं होती, बहकर नहीं जाती। वाई? बिकॉज रूट्स हेल्प टू बाइंड द सोइल। रूट्स जो हैं सोइल को अच्छे से पकड़ कर रखती है और इस तरह से सोइल कंजर्वेशन में रूट्स जो हैं हमारी हेल्प करते हैं। रूट्स हेल्प to bind the soil particles and protect it from getting washed away. Okay students, now this part is complete. You have to note down all 5 questions in fair notebook, in your science fair notebook. Okay students, thank you.